Canto 1, Chapter 8, Prayers of Kunti Maharani and Parikshit Maharaj saved, text number 14. Antastha sarvabhutanam atmayogeshwaro hari samaya yavarano garbham virtaya kurutantave antastha sarvabhutanam atmayogeshwaro hari samaya yavarano garbham virta kurutantave antastha sarvabhutanam atmayogeshwaro hari समयया वृंदो गर्भम वेदता कुरुतंतवे। आस्था माता जी पढ़ो श्लोक। अंतस्थाः सर्वभूतानां आत्मयोगेश्वर हरि स्वमायया विरोधनोद गर्भान् वैरात्या कुरु तन्तवे। पूजा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण। अंतस्था सर्वभूतानां आत्मयोगेश्वरो हरि स्वामयूयावरनोद्गर्वां वैरात्य कुरुतन्तवे। Word to word meaning. Antastha, being within, sarva, all, bhutanam, of all beings, atma, soul, yoga, ishvaraha, the lord of all mysticism, hari, the supreme lord, samayaya, by the personal energy, avaranot, covered, garbham, embryo, veritya of Uttra, Kurutantave of the progeny of Maharaj Kuru. अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि हाउ द उत्तरा जब जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा होता है, वो जो एरो होता है पूरा हीट और इतना अग्नि वाला जो एरो होता है उनकी तरफ आ रहा होता है तेजी से। सो उत्तरा माता ये सब देख के तो किसकी शरण लेती है? भगवान श्री कृष्ण की, और उनसे प्रार्थना करती हैं कि मैं आप अगर आप डिजायर करो, आई मे डाई बट प्लीज सेव माई एम्ब्रॉय, मेरा जो एम्ब्रॉय है इसको बचाइए, ये जो आने वाला बच्चा है इसको इसकी रक्षा कीजिए भगवान। And Lord is always eager to protect his devotees. So now the Lord is reciprocating with the prayers of Uttara Mata. What he's saying, the Lord of supreme mysticism, Shri Krishna, resides within everyone's heart as the Paramatma. तो भगवान जो है वो सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में है। As such, just to protect the progeny of the Kuru dynasty, he covered the embryo of Uttara by his personal energy. तो जो प्रोजनी है कुरु डायनेस्टी की उसको बचाने इज द लास्ट वन नाउ परीक्षित महाराज, क्योंकि कौरव सारे चले गए, पांडव ही हैं, तो ये जो है अभिमन्यु की जो पत्नी है, ये इनका जो बच्चा है वो है वहां पे, तो इट्स द लास्ट person in the dynasty. So he was protecting. How? By his personal energy, he covered the embryo of Uttara. Uttara का जो embryo है उसको cover कर देते हैं। तात्पर्य में प्रपात बताते हैं, the Lord of supreme mysticism can simultaneously reside within everyone's heart or even within the atoms. By his Paramatma feature, his plenary portion. तो भगवान क्या है? भगवान हर जगह है, all pervading है, हृदय में भी है तो एटम में भी है, ठीक है, by his Paramatma feature. Therefore, from within the body of Uttara, he covered the embryo to save Maharaj Parikshit. तो भगवान को अलग से बाहर से आने की जरूरत नहीं पड़ी, he was in the heart. So from within, he there only he itself covered the embryo to save Maharaj Parikshit and protect the progeny of Maharaj Kuru, of whom King Pandu was also a descendant. Both the sons of Dhritarashtra and those of Pandu belong to the same dynasty of Maharaj Kuru. तो दोनों क्या है? पांडव और कौरव दोनों एक ही डायनेस्टी से, कुरु डायनेस्टी से। Therefore both of them were generally known as Kurus. तो दोनों को जनरली क्या कहा जाता है? कुरुस कहा जाता है। लाइक कौरव एंड पांडव तो बाद में आया, but initially they were the descendants of Maharaj Kuru, तो Kurus कहा जाता है। But when there were differences between the two families, the son of Dhritarashtra were known as Kurus, but the sons of Pandu were known as Pandavas. तो मगर जब ये ऐसे आगे उनमें लड़ाई के बीच में मतभेद हुआ तो दोनों डिफरेंशिएट हो गए। जो पांडु महाराज के पुत्र थे उनको पांडव कहा गया, और जो कुरु वाले उनको, मतलब जो दूसरे थे धृतराष्ट्र वाले, उनको कुरुस। बात आ रही है आगे। Since the sons and grandsons of Dhritarashtra were all killed in the battle of Kurukshetra,
The last son of the dynasty is designated as the son of the Kurus. अब क्योंकि जो धृतराष्ट्र के उनके तो सभी लोग मर चुके हैं, चाहे वो ग्रैंड सन्स हो या पुत्र हो या पोते हो, सारे और अब तो सारे ही मर चुके हैं। तो अब कुरु डायनेस्टी में एक ही लास्ट था यहाँ पे उत्तरा माता के गर्भ में, तो इसलिए उनको क्या कहा गया, सन ऑफ द कुरुस। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, तो उनको सन ऑफ द कुरुस कहा गया। ठीक है, आई विल मूव फर्दर। यद्यापि आश्रम ब्रह्मशिरतो अमोघं च प्रातिक्रियं वैष्णवं तेज असाध्या समसमयद भृगुद्वः। क्या बोला है? O Shaunaka, glory of Bhrigu's family, although the supreme Brahmastra weapon released by Ashwathama was irresistible and without check or counteraction, it was neutralized and foiled when confronted by the strength of Vishnu, Lord. तो सुत गोस्वामी शौनक ऋषि को, जो नैमिषारण्य में है, अब सभी से जिसको लीड कर रहे हैं शौनक ऋषि, उनको बताते हैं कि ओ शौनक का ग्लोरी ऑफ भृगु फैमिली, क्योंकि भृगु फैमिली से थे ना शौनक ऋषि, तो उनको कहते हैं ओ ग्लोरी ऑफ द भृगु फैमिली। सुप्रीम जो ब्रह्मास्त्र वेपन है, उसको जो अश्वत्थामा ने छोड़ा है, उसको काउंटरएक्ट करना इतना आसान नहीं है, नो वन कैन चेक इट, बट इट वाज न्यूट्रलाइज्ड एंड कन्फ्रंटेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ विष्णु और कृष्णा। भगवान के आगे तो कोई भी कुछ भी नहीं चल सकता, ब्रह्मास्त्र तो क्या बात है। So it was confronted by the strength of Vishnu. In the purport, in the Bhagavad Gita, it is said that Brahma Jyoti, or the glowing transcendental effulgence, is resting on Lord Shri Krishna. ब्रह्म ज्योति क्या है? जो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है वो ब्रह्म ज्योति है, वो कवर कर देता है ना भगवान को। कई बार अब जैसे सूर्य है, तो कई बार सूर्य का इतना प्रकाश होता है, हम सूर्य को देख नहीं पाते, किरणों से ही, मतलब इतना लाइट होता है, we weren't able to see the sun planet itself because of the effulgence. Similarly, the Lord is covered by through his effulgence, जो उनका रोशनी है, प्रकाश है, इतना ज्यादा है, तेज है कि उनको हम पर्सनल फॉर्म नहीं देख पाते इतने से। मायावादी इसीलिए effulgence को ही क्या बोल देते हैं, वही सुप्रीम मान लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है। In other words, the glowing effulgence known as Brahma Tejas is nothing but the rays of the Lord, just as the sun rays are rays as the sun disk. So this Brahma weapon also, although materially irresistible, could not surpass the supreme strength of the Lord. तो ये जो ब्रह्मास्त्र देवी भगवान की शक्ति को नहीं पार कर पाया। The weapon called Brahmastra, released by Ashwathama, was neutralized and foiled by Lord Shri Krishna by his own energy. That is to say, he did not wait for any other's help because he is absolute. अब भगवान को किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है, उन्होंने क्या किया, खुद ही किसी की रक्षा कर दी। जैसे बोला जाता है, मारे के राखे कृष्ण मारे के। तो भगवान अगर किसी को बचाना चाहे तो कौन मार सकता है, और भगवान जिसको मारना चाहे तो उसको बचा कौन सकता है। He is all powerful. So it was mentioned. मां स्थाहि तद् आश्चर्यं सर्वश्चार्मया अच्युते या इदं मायया देव्या सृजते एवति हन्ति जा। क्या लिखा है? O Brahmanas, do not think this to be especially wonderful in the activities of mysterious and infallible personality of Godhead. By his own transcendental energy, he creates, maintains and annihilates all material things, although he himself is unborn. तो यहाँ क्या बोला है कि भगवान की जो लीला है वो हमारे छोटे से दिमाग से इनकंसीवेबल, मींस वी आर नॉट एबल टू दैट मच, इतना नहीं समझ सकते हम। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे वो कथा आती है, प्रभुपाद वो स्टोरी बताते हैं कॉबलर की और एक ब्राह्मण की। तो जब नारद मुनि भगवान को देखने जा रहे होते हैं, तो नारद मुनि तो नीचे से भ्रमण करके आते हैं, तो जो ब्राह्मण था उससे मिले, तो ब्राह्मण ने बोला कि नारद मुनि ने बोला कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, अभी बिजी हूँ, आके बात करता हूँ। तो बोला कि ठीक है, आप उनसे पूछोगे कि मेरी मुक्ति कब होगी, मैं कब इस जन्म मृत्यु से निकल पाऊंगा। तो नारद मुनि बोला ठीक है, पूछूंगा। तो वो कॉबलर ने भी बोला, कॉबलर ने भी प्रणाम किया नारद मुनि को। तो उन्होंने बोला कि कहाँ जा रहे हैं, भगवान को देखने जा रहे हैं। तो कहते हैं मेरा उनको प्रणाम करना। तो ऐसा बोला। तो नारद मुनि जब ऊपर गए तो उनको याद आया कि नहीं, ऐसे में उन 2 लोगों से मिला था, तो बता दो जरा। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे ऐसे आपके 2 भक्त मिले। तो वो बोला कि ब्राह्मण देव का मुक्ति कब तक होगा। तो भगवान ने बोला कई जन्म लग जाएंगे, उसको बड़ा टाइम है अभी। तो नारद मुनि थोड़ा शॉक हो गया, ऐसे कैसे, वो तो स्कॉलर है, ब्राह्मण है, पूजा पाठ करता है, ऐसे कैसे हुआ। तो भगवान ने बोला नहीं तुम खुद समझ आओगे। तो बोला वो कोबलर, वो तो इसी जन्म में भगवत धाम जाएगा। कहता ऐसे कैसे, वो पढ़ा लिखा नहीं, शास्त्र अध्ययन नहीं करता, पूजा नहीं, इतना नहीं, वो नहीं, तो कैसे। भगवान ने बोला अपने आप रिवील होगा, तुम फिर से जाना, तो एक खबर सुनाना। कहते एक चीज और बताना उनको कि अगर वो पूछे कि भगवान क्या करे, तो कहना कि सुई की नोक से हाथी को निकाल रहे थे। So
I said okay. तो जब ब्राह्मण के पास जाते हैं तो ब्राह्मण को प्रणाम, ब्राह्मण ने प्रणाम किया, पूछा क्या आपने पूछा, बोला हाँ भगवान क्या कर रहे थे, तो कहते हैं कि सुई की नोक से हाथी निकल, है ऐसे कैसे हो सकता है, इमीडिएटली he doubted on the supreme person's power, ऐसे कैसे हो सकता है, सुई के नोक से कैसे हाथी निकल सकता है। तो नारद मुनि didn't said, he said okay अच्छा ठीक है। तो जब कोबलर के पास जाते हैं वो भी प्रणाम करता है, तो जब उनको बोलते हैं तो कोबलर कहता है, मोची जिसको कहते हैं कोबलर, तो उसको बताता है कि मतलब भगवान क्या करेंगे, वो ना सुई की नोक से हाथी निकल। He was like, oh my lord is so inconceivable, he can do anything। तो इतना जो फेथ है कॉबलर का, तो नारद मुनि थोड़ा अचंभे में रह गए, बोला तुम्हें इतना यकीन कैसे, कहते हैं ये जो पेड़ के नीचे में बैठा हुआ इट्स अ बैंनियन ट्री, बैंनियन ट्री का बीज इतना सा छोटा सा होता है मस्टर्ड सीड की तरह, कहता है अगर इसमें से इतना बड़ा पेड़ भगवान निकाल सकते हैं तो सुई की नोक से हाथी निकालना कौन सा मुश्किल है। सो ये एक भक्ति है जो भगवान को थोड़ा बहुत समझ पाए, नहीं तो हम भौतिक दृष्टिकोण से भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते, जैसे सुई की नोक से अब चाहे हाथी निकालने की बात ही क्यों ना हो, ठीक है। So nothing is impossible for the Supreme Lord, but all his actions are wonderful for us, and thus he is always beyond the range of our inconceivable limits. So क्या है, भगवान के जो कार्य हैं वो बहुत ही अद्भुत है और हमारी छोटी सी सोच से बहुत परे है। The Lord is the all-powerful, all-perfect personality of Godhead. The Lord is 100% perfect, whereas other, namely Narayan, Brahma, Shiva, the demigod, and all other living beings, possess only different percentage of such perfection. तो बाकी जो है जैसे लॉर्ड शिव है 84 है, 84 आई थिंक, 84% है, ब्रह्मा जी 78% है, तो जीवात्माओं का उससे भी कम होता है जो, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान के गुण हैं जो वो रिप्रेजेंट करते हैं, मगर 100% बराबर तो नहीं। So no one is equal to or greater than him, he is unrivaled। अनराइवल्ड मतलब इनकी कोई राइवलरी नहीं, राइवलरी किसकी होगी, जिसके बराबरी में कोई हो, भगवान के बराबरी में कोई है ही नहीं, तो उनसे बढ़कर या उनके बराबर का कोई नहीं है। So he is inconceivable and he is all powerful, ठीक है। We'll move further। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्ते आत्मजासः कृष्णया पर्यानाभिमुखं कृष्णम् इदम् आह पृथा सती। Thus saved from the radiation of the Brahmastra, Kunti, the chaste devotee of the Lord, and her 5 sons and Draupadi addressed Lord Krishna as he started for home। तो इस तरह से परीक्षित महाराज को गर्भ में बचाकर तो भगवान के यहाँ आप द्वारका की तरफ प्रस्थान करना शुरू करते हैं। तो कुंती माता जो कि उनकी बहुत बड़ी भक्त हैं, पांडवों के साथ अपने पुत्रों के साथ द्रौपदी मैया उनको प्रणाम मतलब किस तरह से एड्रेस करते हुए पढ़ेंगे हम। So Kunti is described herein as sati or chaste due to her unalloyed devotion to Lord Shri Krishna, ठीक है। तो chaste की बात आ रही है, chastity towards the Lord also and the master, तो जैसे भगवान तुम्हारे मास्टर ही है तो उनके प्रति chaste है, तो that is like sati, chaste lady। Her mind will now be expressed in the following prayers for Lord Shri Krishna। अब कुंती महारानी की prayers हम आगे शुरू हो जाएंगी हमारी, ठीक है। तो एक एक प्रेयर को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है, प्रयास करना है उनको याद करने का भी, ठीक है। इट्स वेरी नाइस टू मेमोराइज द प्रेयर्स बाय द ग्रेट डिवोटीज दैट रियली हेल्प अस टू मेडिटेट ऑन लॉर्ड एंड आल्सो हेल्प अस टू डेवलप सच मूड, ठीक है। A chaste devotee of the Lord does not look to others, namely any other living being or demigod, even for deliverance from danger। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त है वो किसी और के प्रति नहीं जानते हैं। जैसे एक बार एक छोटा सा फनी स्टोरी है, आई थिंक मैंने पहले भी बताया हो। तो एक बार ब्रज में अब कई लोग हैं जो कई बार खड़े हो जाते हैं तो प्रवचन करना शुरू कर देते हैं। तो एक ब्रजवासी, तो कुछ बहस हुआ पता नहीं, तो जो प्रवक्ता था उसके साथ कुछ बहस हो गया उस ब्रजवासी का। तो ब्रजवासी बहुत शुद्ध भक्त था भगवान का, कृष्ण का। तो उसने पूछा तुम कौन, उसको प्रवक्ता को पूछा, बोला मैं ऐसा ऐसा संत हूँ तो यहाँ लेक्चर कर रहा हूँ। तो नहीं, बोलता मैं भगवान का अनन्य भक्त हूँ। वो जो प्रवक्ता था उसने ऐसा बोला, बोला अच्छा अनन्य भक्त, तो बोला तुम कौन हो। प्रवक्ता ने उस बच्चे को पूछा कि भाई तुम कौन, तुम जो मुझे ऐसा बोल रहे हो। तो बोला मैं भगवान का अनन्य भक्त हूँ। बोला अच्छा। तो ब्रजवासी ने पूछा कि अनन्य, बोला अनन्य भक्त क्या होता है। तो ब्रजवासी ने पूछा तुम बताओ अनन्य भक्त क्या होता है, तुम अपने आप को अनन्य बता रहे हो। तो कहते हैं अनन्य भक्त जो दुर्गा को नहीं जानता, शिव जी को नहीं जानता, गणेश को नहीं जानता, इसको नहीं जानता, उसको नहीं जानता, उसको नहीं जानता, बस एक केवल भगवान कृष्ण को जानता है। तो बोला अच्छा। तो बोला भाई अनन्य भक्त क्या होता है तो बता। तो ब्रजवासी ने सरल सा उत्तर दिया, बोला ये जो इतनी लंबी लिस्ट तुमने मुझे बताई, हमें इनके बारे में तो मुझे पता भी नहीं, तुमसे पहली बार सुन रहा हूँ। हम तो अपने कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानते।
सो दैट इज अनन्य भक्त. दैट मीन्स कि भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको तो इन लोगों के बारे में इनका नाम भी नहीं पता. वो ब्रजवासी बता रहे, तो मुझे तो नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ तुमसे, मुझे तो पता ही नहीं कि मतलब भगवान कृष्ण के अलावा वो किसी को नहीं देखते, वो शुद्ध भक्त होते हैं. तो कोई तकलीफ भी आए तो वो भगवान के पास ही जाते हैं और कहीं नहीं जाते. So that was all along the characteristics of the whole family of the Pandavas. They knew nothing except Krishna. वो कुछ नहीं जानते भगवान कृष्ण के अलावा. Therefore the Lord was also always ready to help them in all respects and in all circumstances. So फिर भगवान उनको स्पेशल फेवर क्यों ना दे? अब आप ही का कोई मित्र हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, वेल विशर, ठीक है, और वो आम जनता के प्रति इतना लगाव थोड़ी ना होगा जितना आपके प्रति होगा. कुछ डेंजर होगा तो वो आपको पहले मदद करेगा rather than helping other person because you are the priority, you are the very best close friend, isn't it? तो फिर भगवान क्यों नहीं ऐसा स्वभाव शो करेंगे? वो भी करेंगे. हम में होने का ही तो स्वभाव हमें है. तो भगवान के जो सबसे प्रिय, उनको एक स्पेशल कृपा तो होती है ना. सो यहाँ आगे लिखा है, This is the transcendental nature of the Lord. He reciprocates the dependent of the devotee. जैसे भगवत गीता में भी है कि भगवान जिस प्रकार से कोई शरणागत करता है उसी प्रकार से उसके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं. तो जो पूर्णतः शरणागत है भगवान भी पूर्णतः उसी के हो जाते हैं. So one should not therefore look for help for imperfect living beings or demigods. तो इसलिए मैं देवताओं या जो imperfect जीव हैं इस भौतिक जगत के, उनके पास मदद के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें मदद नहीं कर सकते, वो खुद ही तकलीफ में. आप देखिए लॉर्ड शिवा ने जब वृथा किसको वर दिया था, Who was that demon? जिसको लॉर्ड शिवा ने, बरकासुर, I don't remember the exact name. I'm sorry if I'm taking wrong name. So जिनको वो वरदान देते हैं कि ठीक है तुम जिसके भी सिर पे हाथ रखोगे तो वो उसी टाइम पे खत्म हो जाएगा. तो ऐसा दिया, देखो भगवान शिव जी को भी प्रसन्न किया, उन्हीं से वरदान लिया. Now he got lusty after the wife of Lord Shiva. तो बोले कि पहले लॉर्ड शिवा को ही खत्म करो, मुझे वर दिया. तो लॉर्ड शिवा सारी ओर भाग रहे, देखो कैसे कैसे भक्त मिल जाते हैं देवताओं को, देवगणों को. तो वो लॉर्ड शिवा को ही मारने चले गए. और लॉर्ड शिवा खुद को ही, भाई मेरे को ही बचा लो कोई, तो who can protect? So then he finally went to Lord Krishna, Lord Vishnu. Then Lord Vishnu helped Lord Shiva at that time. ठीक है, तो उसको जो डीमन था उसको बोला कि देखो ये लॉर्ड शिवा ना ऐसे ही है, इसकी बातों में यकीन मत किया करो, कभी कभी ऐसे ही बोल देता है. तो अगर यकीन करना तो क्यों ना पहले तुम्हारे सिर पे रख के देख ले कि सही भी है कि नहीं है. तो इस तरह से उसको थोड़ा चालाकी से भगवान हराते हैं, मतलब मारते हैं उस डीमन को. तो लॉर्ड शिवा किस टाइम प्रोटेक्शन करते हैं. सो इट्स द पॉइंट आई वांटेड टू मेक इट दैट the demigods are also, they are imperfect, they cannot help us that much as Lord Krishna. So always whenever in the danger or whatever it is, we should go to supreme person Krishna. ठीक है. So such a chaste devotee also never asks for the Lord for help, but the Lord out of his own accord is always anxious to render it. तो जो भक्त है वो तो भगवान से मदद भी नहीं मांगते, बोला कि नहीं मैं नहीं मांगूंगा. जैसे एक छोटी सी स्टोरी आती है, जैसे एक बार सूरदास और तुलसीदास, I don't know is it bona fide or not, but still I have heard in the lectures, so I'll repeat it. So क्या होता है, तो तुलसीदास जी राम जी के भक्त हैं और जो सूरदास है भगवान कृष्ण के. तो सूरदास जी तो नेत्रहीन है, उनको दिखता नहीं है, भौतिक दृष्टि से तो उनको नहीं दिखता. तो एक बार वृंदावन में तुलसीदास भी साथ में होते हैं. तो एक जो पागल हाथी होता है वो पूरे जंगल में, वृंदावन में वन में पूरी तरह तबाही मचा रहा होता है. तो बहुत जगह ऐसा ऐसा बहुत तबाही मचाता है वो. तो क्या होता है, क्या होता है, इट्स लाइक सो लॉर्ड इज सॉरी आई फॉरगॉट, कृष्ण हाँ. So what did happen that Tulsidas he says no I will not. तो सूरदास बोलते चल भाग यहाँ से, पेड़ के ऊपर आ जा. 2 मिनट आई थिंक ऐसे एलिफेंट आता है, तो तुलसीदास सामने देखते, सूरदास होते नहीं. सूरदास ऊपर से आवाज लगाते, भाई ऊपर चढ़ जा, पेड़ के ऊपर बच जाएगा. ना माय लॉर्ड राम विल प्रोटेक्ट मी, आई विल नॉट डू एनीथिंग. सो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे अपने भगवान पे विश्वास है, वो मुझे मेरी रक्षा करेंगे. तो नाम जप कर रहे होते हैं. तो कुछ समय बाद क्या होता है, जो हाथी है वो आ जाता है नीचे और तुलसीदास रुकते हैं. तो उसके कानों में राम बोलते हैं. तो वो जो हाथी होता है वो चला जाता है शांत होके, तो चला जाता है. तो तुलसीदास बोले देखा मेरे भगवान ने मेरी रक्षा की. तो फिर सूरदास आते कहते हैं हाँ भगवान तो रक्षा करते हैं. तो फिर तुलसीदास सूरदास कहते हैं कि एक्चुअली आई वुड हैव आल्सो कॉल्ड कृष्णा,
but I don't want to disturb him. He might be busy with his devotee doing his enjoying his rasas. So मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था. क्यों मैं अपने तुच्छ प्राणी, अपने तुच्छ, मैं एक तुच्छ छोटा सा भक्त हूँ, भक्त भी नहीं कह सकते, तो अपने लिए मैं उनको तंग परेशान करूँ. तो जब ऐसी बात तुलसीदास जी ने सुनी, उन्होंने बोला ये तो मुझसे भी बड़े भक्त हैं, देखो भगवान को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते. तो इवन द डिवोटी डोंट आस्क द फेवर फ्रॉम द लॉर्ड, बट लॉर्ड बाय हिज ओन विल प्रोटेक्ट द डिवोटीज. सो खैर इसका इसेंस कुछ और. आई जस्ट वांटेड टू मेक अ पॉइंट हियर कि जो भक्त होते हैं वो भगवान को भी नहीं तंग करते, कहते नहीं, we don't want to disturb, we just want to serve him, but Lord by his own accord he helped the devotee and protect them. ठीक है, ऐसा संबंध होता है भगवान और भक्तों का. तो आगे का वर्स पढ़ते हैं. So this is the prayer. Shall we start it or we'll do it tomorrow? हाँ, चलो आज के लिए इतना स्टॉप करते हैं. जो प्रेयर है कुंती महारानी की वो हम कल शुरू करेंगे. ठीक है. सो आज वैसे भी 4 मिनट ही रह चुके हैं 8:30 होने में. तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट आप लोग बोल सकते हैं. यस, हरे कृष्ण. जैसे अभी स्टोरी सुनाई थी आपने, वैसी एक स्टोरी भी है ना, मतलब हमारे गोस्वामी की, गोस्वामी जो थे. यस, रूप गोस्वामी वाज देयर एंड राधा रानी वाज राधा प्रोटेक्टिंग हिम. के ये वही धूप से भी बचाती है उनको, कुछ ऐसा होता है. बचाते हैं ना, वही वो हाँ मतलब काम कर रहे थे, तो उनके फिर उस सनातन गोस्वामी पीछे से देखते हैं कि राधा हाँ, रानी, तो फिर वो बोले कि उनको तुमने चेस्टेस भगवान करते को अपनी सेवा में लगा रखा है, तो क्यों नहीं एक हट बना के तो वहां जब करते हो. ऐसा बोला उन्होंने. हैं, कुटी बनवाई थी उनके हाँ, लिए. कुटी बनवाई थी. Yes. So that is it. The Lord is, the devotees are never wanted to take service or any kind of favor from the Lord, but because they are fully surrendered to the Lord, Lord Himself protect them. Yes. तो ऐसा रिश्ता है एक भक्त और भगवान का. जी. और कुछ कहना है आज तक? नो माता जी. Okay. Thanक यू फॉर माता रिमाइंडिंग द जी स्टोरी. या यही देखो ना, माता जी कृष्णा कहते हैं, कृष्णा इज लाइक, मुझे याद आ रहा था एक जगन्नाथ, जगन्नाथ का स्टोरी. तो ऐसे ही जो रघुदास होते हैं ना, रघुदास एक बारी ही वॉज वेरी ग्रेट डिवोटी एक्चुअल में, लेकिन ना वही थोड़ा लो क्लास थे, तो इसलिए वो उनको टेम्पल में एंट्री नहीं मिलता था, ऐसा कुछ. हाँ, तो फिर उनका एक स्टोरी है कि वो बहुत ग्रेट डिवोटी थे. मतलब उनके पहले की भी बहुत स्टोरी है, लेकिन जब वो ओल्ड हो गए, ये वाली स्टोरी थी उनकी कि रघुदास जो थे ना, वो मतलब इतना एक बार इतने बीमार हुए थे, कि वो चल उठ भी नहीं पाते थे. लाइक लाइंग इन अ बेड एंड वहीं स्टूल पास करना, वहीं यूरिन पास करना, मतलब वो वॉक भी नहीं कर पाते थे, इतना वो उनकी हेल्थ कंडीशन खराब थी. तो वहां पे एक बॉय उनको सर्व करने आया था. यस, दैट इज कृष्ण. ये यस, और मतलब जगन्नाथ, एंड ही वाज नॉट इन एक्सटर्नल सेंसेस, उस टाइम पे. तो जब वो थोड़ा ठीक, मतलब उनको चंदन की बॉडी, उनकी पूरा यूरिन एंड स्टूल साफ करना, और उसके बाद में मतलब उनको चंदन से लेप करना डेली. सो उसके बाद में जब वो थोड़ा ठीक होने लगे ना रघुदासा, तब रघुदासा वाज लाइक, उनसे कहा हु आर यू, लाइक उन्होंने यस. रियलाइज किया कि ही इज जगन्नाथ. एंड देन आफ्टर दैट उनके बीच में कन्वर्सेशन हुई, और उनकी कन्वर्सेशन लाइक, तो फिर बोलते हाँ, ये आप क्या कर रहे हो, इसने रघुदास लाइक, हाउ कैन यू सर्व मी, यू नो गो, लाइक. फिर जगन्नाथ का एक, जगन्नाथ के वर्ड्स थे ऐसे कि कि जैसे तुम मुझे सर्विस के लिए भागते हो, ये मैं इन सर्विसेज के लिए तड़पता हूँ, लाइक तड़पता इन द सेंस, आई रन फॉर दीज सर्विसेज. Yes. एंड Even Lord दैट, takes pleasure in serving his devotees. यस, एंड आई जस्ट लव दिस स्टोरी बिकॉज अब देखो ना माता जी की, कौन इतना प्यार कर सकता है कि मतलब वो स्टूल पास कर रहा है, उसका स्टूल क्लीन अप कर रहा है, और मतलब स्टिल इज लाइक, अरे. एंड आई जस्ट लव दिस स्टोरी कि मतलब भगवान कुछ भी कुछ. Many more stories coming to my mind, but it's already 8:30, so I Yes, will yes, share some other time. मेरे मन में और भी कई stories घूम रही हैं इसको लेके. There are many, so I might discuss in some other time. So, but just do remind me, so we'll share the stories. Yes. So, any of you having any questions now? किसी और को कुछ कहना है? पूजा माता, do you have anything? No, Mataji. Okay. Okay, so nothing. So we'll be stopping up here. So we'll continue tomorrow Kunti Maharani's prayers. कल से हम शुरू कर देंगे उनको.
ठीक है. And evening the class I will notify you because the schedule is little bit busy for till Sunday. So the evening class I'll notify if there will be no class. If class is there, obviously the message will be there. ठीक है. So evening I'm not sure yet, so we'll let you know. So okay then we'll stopping up here. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रपाद की जय, all the symbol devotees की जय. Hare Krishna. Thank you so much. See you all in the evening, hopefully. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone.